Any question on this? I think you have reviewed this. We have a detailed discussion on this, and along with this general phenomena that takes place with the addition of the moisture in the atmospheric air, we also have the concept of energy. So whenever your energy is concerned, you have been having enthalpy. So enthalpy of atmospheric air can be calculated with the help of this, that the total enthalpy of atmospheric air is equals to the enthalpy of the dry air and that of the moisture. So this can behave these two forms. So when you divide mass of the dry air both in sides, so you will come up with this, that enthalpy is equals to HA plus omega HV, because whenever you have been having the division of MA, so it will be divided by MA. So it's MV upon MA according to definition, it is known as specific humidity, and this first term will be free from MA, that's why it is only HA is there, and the second term will be MV upon MA, and that is the omega. So this is the definition of omega, so that's why it has been omega. So enthalpy, a specific enthalpy can be found as a specific enthalpy of the dry air plus omega into a specific enthalpy of the moisture. So this is the total enthalpy of the atmospheric air. So as this enthalpy HV is at very low pressure, so as we discussed yesterday, day before yesterday, that we are having a constant enthalpy at constant temperature. So it means that the enthalpy is depending on temperature only, and the value of enthalpy at anywhere on this in this low pressures will be equal to Hg, corresponding to its saturated condition at that temperature. So we can easily replace this HV as Hg. So it means that it is easy to find a specific enthalpy of the of the atmospheric air by considering or by having this Hg value from the steam tables at that pressure and temperature. So again, you note that we are having a unit of kilojoule per kilogram dry air instead of kilojoule per kilogram atmospheric air. Okay. So जी सर. this is simply a description. Okay, any question on this up to this point? Sir, why did you No sir. replace this HV को HG से? ये डिस्कशन हमने कल किया था, परसों सेकंड लास्ट क्लास में, इफ यू रिकॉल. हमने ये दिखाया था कि जो HV की जो लाइनें हैं, इट्स वेरी स्ट्रेट इन द लो प्रेशर रीजन. So if you considering this value of HV, so that is nearly equal to corresponding to Hg at that temperature. So it means that अब आप H की वैल्यू ये वाली एक्चुअली अगर है तो ये वैल्यू नियरली इक्वल टू Hg होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिलती है तकरीबन, यानी यही दोनों पॉइंट्स उसी टेम्परेचर लाइन पे मौजूद हैं जो हम जिस पे एटमॉस्फेरिक एयर हम कंसीडर कर रहे हैं. तो उसमें आप H वैल्यू आप ये लें या H की वैल्यू ये लें, तो यू विल बी हैविंग द सेम रिजल्ट्स. So that's why we can easily replace HV into Hg. Got it? जी सर. Any other question?
Yes. Okay. So this is the psychrometric chart that I have provided you. Hopefully you will be having this. Please look into that your file section and try to grab this. So this is known as the psychrometric chart. So this will be very useful in finding or having the characteristic of the air, atmospheric air, in presence of moisture. So you can see the different lines are been mentioned there. So this is sort of the base. This base is representing the dry bulb temperature. So there are two terms that has been used as the dry bulb temperature, and one is the wet bulb temperature. So in calculation of different properties of atmospheric air, experimentally these two temperature values have been determined. So in your lab, inshallah, you will find that there will be a sling psychrometer. So that sling psychrometer has been used to measure these two parameters. That is, let me show you the diagram of that. अच्छा, इसके बाद पहले आपने एक काम ये करना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये आप देख लें इसको. Please bring your paper and calculator with you. So what you're seeing that we are having this room having the dimensions shown 5 meter by 5 meter into 3 meter. So 5 by 5 is being considered to be the floor area, and 3 meter is the height of the room. Now this contains air at 25 degrees centigrade and 100 kPa pressure. And the relative humidity has been found with the help of experiment the instrument, that is 75%. Now determine the partial pressure of the dry air. The specific humidity, the enthalpy per unit mass of the dry air, and the masses of the dry air and water vapor in the room. Are you familiar with these terms? Yes, sir. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर मतलब आपने यूज किया है PA, जबकि टोटल प्रेशर आपका है 100, दैट इज टोटल P. ये है P आपका, ठीक है. और आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो है आपका ओमेगा. Enthalpy per unit dry air, that is enthalpy, that is H. And the masses of the dry air and water vapor in the room. So masses of the dry air, that is MA. And ये आप नोट डाउन करते जाए चीज़ें. एंड MV, ये चीज़ें आपने मालूम करनी है, ठीक है. जबकि आपके पास ये 5 भी मौजूद है, टोटल प्रेशर भी मौजूद है और टेम्परेचर भी गिवन है.
और इस डायमेंशंस, रूम के डायमेंशन से आपको पता ये चल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर दैट इज बीन इनसाइड द रूम इज दिस, दैट इज V. Are you clear with the statement? जी Yes. सर. Yes. Okay. So having these thing in mind, you can proceed it in a way that the partial pressure of dry air can be determined from this equation. Cleared? Yes, sir. जी सर. भाई एक दो जने जो बैठे हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं वो कनेक्टेड हो जाए मेरे से, ठीक है? अच्छा, इसमें आपने मालूम करना है PA, तो PA मालूम करने के लिए आपको चाहिए PV. तो naturally another equation must be required, and that is the definition from the definition of relative humidity, that is PV upon PG. ठीक है, तो आपके पास phi given है, that is 75%, और PG बेसिकली आपका होता है सैचुरेशन प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द डेफिनेशन, अगर आपको याद हो तो. ठीक है, अगर कोई भी PV हो तो उसके करेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो PG होगा उस रेशो को कहते हैं phi. ठीक है, तो हमने फ्रॉम द स्टीम टेबल देखा कि व्हाट इज द सैचुरेशन प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आपके पास टेबल्स पड़े हुए हैं? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. पड़े हुए. हाँ, तो आप देखो Right, 165. ये वाला टेबल लगेगा. तो अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? 3.16. हाँ, 3.16. 3.16. तो आप इस हिसाब से ये 3.16 जो अभी वहाँ से टेबल से निकाला, और यू कैन फाइंड दैट, यानी इस टोटल 100 kPa में से 2.38 kPa वाटर का पार्शियल प्रेशर. ठीक है, जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर, Dry air that का. is 97.62 kPa. So this is the one of the result that was required to find. अच्छा सर, ये जो टोटल प्रेशर है वैसे तो उसने दे दिया, वरना हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा कि टोटल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मली आपको जो भी इलाके होते हैं वो आपके सी लेवल पे ही आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं वो गिवन होंगी. सो इफ़ द टोटल प्रेशर इज गिवन टू यू, दैट यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली. और अगर ना हो तो फिर हम सी लेवल के मुताबिक ही काम करें. अज्यूम कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो. सही है सर. ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप देख लें. दिस इज अ वेल नोन फार्मूला, दैट इज 0.622 PV अपॉन P माइनस PV. इसमें सारी चीज़ें गिवन हैं क्योंकि PV हम जस्ट मालूम कर चुके हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीन वेल नोन. तो अब आपको पता चला ये. तो जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि ओमेगा की वैल्यू बहुत ही कम होती है इन किलोग्राम वेपर टू किलोग्राम ड्राई एयर. ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर कन्वर्ट किया जाता है इन ग्राम H2O पर किलोग्राम ड्राई एयर. तो जब आप इसको ये करेंगे तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लीड टू यू, कितना होगा? 15.2 15.2 15.2 हो जाएगा. कितना होगा? हाँ, 15.2 हो जाएगा. 15.2 ग्राम. हाँ, 15.2. अच्छा, इसको ग्राम हम H2O पर. हाँ, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ग्राम. अब H2 को हम लिखते हैं वाटर V के हिसाब से, तो ग्राम ऑफ वाटर वेपर
पर किलोग्राम ड्राई एयर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ड्राई एयर स्मॉल ए से है और वाटर वेपर स्मॉल वी से है, तो आप इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सो एनीवे, सो आपका जो थर्ड जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो चाहिए हमें, दैट इज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज जस्ट वी हैव कम इनटू कॉन्टेक्ट एंड दैट वुड बी, अच्छा ये जो है या तो आप एच ए टेबल्स यूज़ करें जिसमें आप एच ए मालूम करें, यानी ड्राई एयर के लिए। तो in order to avoid that use of the table, so instead of HA you can use the CPT. So if you recall the definition of CP, that is delta T upon delta H. So at that particular state, the value of enthalpy can be found with CPT. So here the T will be used as centigrades. ठीक है, ओमेगा is determined। अच्छा यहाँ पे ओमेगा किलोग्राम पर किलोग्राम में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी एंथैल्पी पर किलोग्राम ड्राई एयर है और मॉइस्चर आपका किलोग्राम में होना चाहिए। और आपका जो Hg है दैट इज दिस वन, और ये आपको मिलेगा किस पॉइंट पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी टेबल से जो अभी हमने यूज किया है। जी सर। लेकिन सर इसमें HV जो है चेंज हो गया, HG हो गया। CPT का तो समझ में आ गया, ये चेंज कैसे हो गया? 2546, ये अभी भी मैंने बात की, आप फिर रिकॉर्ड करवाते हो। ये सर CPT वाली आपने बात की वो समझ में आ गई, लेकिन इसमें HG चेंज हो गया ना, HV वो था अभी तो वहाँ हमने पे। डिस्कस किया था कि HV जो है वो नियरली इक्वल होता है Hg के एट द लो प्रेशर्स। 02 ने ये तो पूछा था ना अभी। जी जी सर, जी जी। ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं इन द वेरी लो प्रेशर रीजन, तो आप Hg लें या HV लें तो तकरीबन बात एक ही हो जाती है, इसलिए इसने नियरली इक्वल टू कहा है। देखें ये यूज कर रहा है नियरली इक्वल टू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने स्टीम टेबल से मालूम कर ली, और जब आपने कैलकुलेट किया H की वैल्यू तो आपको मिल गई दैट इज 63.8 किलो जूल पर किलोग्राम ड्राई एयर। ठीक है भाई। फर्स्ट लेक्चर जो Yes, sir. साइकोमेट्री का हुआ था उसमें भी हमने एक एम्पिरिकल रिलेशन दिखाई थी आपको कि Hg हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो ये भी नियरली इक्वल टू है, ठीक है। तो या तो टेबल से मालूम करें या आप इस फार्मूले से मालूम करें, तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Hg। तो ये भी तकरीबन आपकी वैल्यू सेम आ रही है, ये ड्राई ठीक एयर है के लिए निकालिए एच की वैल्यू, जी। ड्राई एयर के लिए निकालिए एच की वैल्यू, एंथैल्पी। नहीं यार बेटा, ये जो वैल्यू है एंथैल्पी की Hg की, ये तो मॉइस्चर की है जो उसमें मौजूद है, क्योंकि देखें दो पार्ट है H के, एक ड्राई एयर का जी जी पार्ट है, एक वाटर वेपर का पार्ट है। ड्राई एयर को हम नहीं, हम बिल्कुल ही हाँ लिफ्ट नहीं करवा रहे जी। वो सर लेकिन ये ड्राई एयर लिखा हुआ था इसलिए मैंने पूछ लिया कि ये कहाँ पर? एंथैल्पी ड्राई एयर की, ये आंसर में सर ये लिखा हुआ है ना पिंक कलर के अंदर। हाँ ये मैंने आपको पहले बताया, एंथैल्पी का यूनिट ही इस तरह है क्योंकि हमने मास ऑफ द ड्राई एयर डिवाइड किया बोथ इन साइड्स, याद है? अच्छा जी जी सर, सही सही समझ गए। हाँ, तो मास जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों तरफ, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हम मास ऑफ द वाटर वेपर करें या मास ऑफ द ड्राई एयर करें, तो हमने डिसाइड ये किया कि हर चीज़ हम पर किलोग्राम ड्राई एयर पे बुनियाद पे देख रहे हैं, तो इसको डिवाइड इन्होंने मास ऑफ द ड्राई एयर कर दिया, ताकि ये सारे जो यूनिट जो जाएँ वो पर किलोग्राम ड्राई एयर की बुनियाद पे इवेल्यूट हो सके। ओके सर। इंटरनल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर वो भी किलो जूल पर किलोग्राम ड्राई एयर से होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी की फॉर्म होगी वो पर किलोग्राम ड्राई एयर से होगी जहां भी आपको इनकाउंटर होगा, ओके सर। ठीक है।
अच्छा, अब मालूम करना है मास ऑफ द ड्राई एयर, मास ऑफ द वाटर वेपर। पहले तो आपने टोटल वॉल्यूम मालूम कर लिया कि टोटल एयर है कितनी, ठीक। और जनरल गैस इक्वेशन आपने यूज़ की दोनों के लिए, मास ऑफ एयर के लिए, ड्राई एयर के लिए भी और मॉइस्चर के लिए भी, क्योंकि हमने देखा कि द वेरी लो प्रेशर मॉइस्चर कैन बी मॉडल्ड एज an ideal gas. So because of that fact, we can use this ideal gas equation, and you come up with this is the dry air and this is the moisture. इसके आगे अगर हम ऐसे लिखें तो आपको रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप पहले मालूम करें मॉइस्चर का मास। वो आपको पता है कि ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा से भी आप मॉइस्चर का मास मालूम कर सकते हैं, वो वही आएगा जो यहाँ नज़र आ रहा है। और बाकी जो टोटल मास बचेगा वो होगा आपका ड्राई एयर का। और टोटल मास कहाँ से मालूम करेंगे? बाय हैविंग दिस टोटल वॉल्यूम। तो एयर और वॉल्यूम के दरमियान जो डेंसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए, और जब उसको मालूम हो जाएगा तो आपको टोटल ड्राई एयर का मास भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो ये बात समझ आई आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पे? नो सर। Is very straightforward and clear, Oh, unless sir. only the thing is required is your basic knowledge and the basic understanding of the psychometric terms that must be in your mind, and this formula must be in your mind, so you can easily tackle with such problems with clear understanding. ठीक है, अब ये भी देख लें, एक प्रॉब्लम और है, ये ड्यू पॉइंट के हिसाब से है, तो मुझे आप थोड़ा कंसेप्ट भी समझाएंगे। आप इसको पढ़ें प्रॉब्लम को। सर इसमें ड्यू पॉइंट मांग रहा है। हाँ, now we are having a room and you have been having a cold weather. Inside that we have air at 20 degrees centigrade and 75% relative humidity. At what window temperature will the moisture in the air start condensing the inner surfaces of the windows? ये आप तजुर्बा, आपको एक्सपीरियंस होता होगा कि बाहर सर्दियां हो और आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो विंड स्क्रीन आपकी मुस्तसल जो है वो मॉइस्ट होती रहती है एज यू आर मूविंग ऑन द रोड। कभी आपने महसूस किया है? Yes, sir. जी Yes, जी sir. सर। Yeah. जी 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 बिल्कुल। क्यों होता है? कंडेंसेशन होती है वहाँ पे। कंडेंसेशन ड्यू टू ड्यू पॉइंट। बताओ ना, समझाओ तो सही, कैसे होता है बताओ। सर वहाँ पे आपके पास इनसाइड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर आपके जी, पास कोल्ड एयर होती है, तो टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है और ड्यू पॉइंट पे जैसे जाएगा तो वहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है टेम्परेचर आपके ड्रॉप पास। कहाँ होता है? नहीं, पहले मुझे समझाओ, टेम्परेचर कहाँ ड्रॉप होता है? और अंदर होता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप कैसे होगा? आप सर तो वो अंदर बंद हैं। हीट ट्रांसफर होगा ना बाहर की तरफ। नहीं, आपने तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एट सर्टेन हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग, क्योंकि आप बैठे हैं ना, तो आपको कंफर्टेबिलिटी चाहिए। वही ठंडक अगर अंदर आ जाए तो हम तो नहीं चाहेंगे कि ठंडक आए अंदर। सर मेंटेन सर तो वो रहता है लेकिन विंडशीट ओल्ड हो फ्रेंडली जाती है थोड़ी सर। सरफेस और पे जो होता है। शीशा है बिल्कुल वहाँ पे, तो ये वहाँ पे हीट हो सकती है। सरफेस ने किसने बात की है? सरफेस वाला कौन है? जी सर। 09। जी हम्म सर सरफेस पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है।
सर हाँ गाड़ी तो की जो सरफेस होती है, हाँ गाड़ी बताएं की जो सरफेस होती है उसके ऊपर होता है लो टेम्परेचर। अच्छा, हमने वो कंसीडर क्या होता है अपना, होता क्या है कि जो हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है वो जैसे ही ड्रॉप होकर ड्यू पॉइंट पर पहुंचता है। अच्छा, ड्यू पॉइंट पर पहुंचता कहाँ है? वो गाड़ी की सरफेस के ऊपर, क्योंकि गाड़ी की सरफेस के ऊपर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो होता है हमारे पास, यानी कि कम टेम्परेचर होता है। तो वो जैसे ही उस कितने का टेम्परेचर है? पर पहुंच जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है। ये तो आसान तरीका है। देखें, आपका जो अगर विंड स्क्रीन है दैट इज अ ग्लास, बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर आपने ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है फॉर योर कंफर्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि अंदर की एयर हॉट है और बाहर की एयर ठंडी है। तो ये जो सरफेस है, ये ग्लास है, ये रैपिड जो है वो हीट ट्रांसफ़र करता है, नॉट ओनली विथ द कंडक्शन बट रेडिएशन आल्सो। तो होता ये है कि इस हॉट एयर जो कॉन्टेक्टेड होती है ऑन द इनसाइड सरफेस, वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। और क्यों ठंडी होना शुरू हो जाती है? क्योंकि बाहर का सरफेस जो है उसका टेम्परेचर लो है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट ट्रांसफर दिस इनसाइड एयर इज बिन गेट कंडेंस्ड, द मॉइस्चर इन दैट एयर इज बिन गेट कंडेंस्ड। उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर कम है। तो इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, और ये विंड स्क्रीन का जो थिकनेस है वो भी बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर वाली एयर जो है उसमें जो मॉइस्चर है वो रैपिड इसकी हीट ट्रांसफ़र की वजह से, लॉस की वजह से उसका ड्यू पॉइंट अराइवल हो जाता है, एंड यू आर फाइंडिंग सम वाटर, थिन फिल्म ऑफ वाटर ऑन योर विंड स्क्रीन इनसाइड इट। ठीक है, इसलिए आप उसको कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये अगर फिनोमिना होगा तो नेचुरली आप इजीली हैंडल इट। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके गाड़ी के अंदर जो है मैन्युफैक्चरर ने आपको कुछ वेंट्स दिए होते हैं नियर द विंड स्क्रीन। डैशबोर्ड पे आप गौर करेंगे तो डैशबोर्ड के विंड स्क्रीन की तरफ एक वेंट्स खुले होते हैं, सुराख सुराख होते हैं जिसमें से एयर गुजारी जा सकती है। और आपके पास एक डायल होता है या स्लाइडर होता है जो ऑप्शन देता है आपको कि इन केस ऑफ दिस यू हैव टू स्विच ऑन योर एयर कंडीशनर एंड मेक द डायरेक्शन ऑफ एयर दैट एयर इन थ्रू दोज वेंट्स, जो कि विंड स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे और उसका सरफेस को टेम्परेचर को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों सरफेसेस का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है कम हो जाए और ये जो ड्यू की फॉर्मेशन है वो रुक जाए। क्योंकि ड्यू की फॉर्मेशन मतलब आपके लिए नुकसानदेह है, इज डिटेरियोरेटेड द विजिबिलिटी ऑफ द रोड। बात में आई? जी 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 सर। सर। तो ये जो गाड़ियों में जो वेंट्स हैं इसको भी आप जाके देखें कि ये क्या है, और ऑप्शंस भी आपको सामने नज़र आते हैं। डैशबोर्ड पे कंट्रोलर लगा होता है जो आपको डायरेक्शन ऑफ द एयर देता है। एक तो आपकी फ्रंट की नॉर्मली आपके पास ऑप्शन होता है कि फ्रंट पे आए और फीट पे जाए या दोनों पे आए, और साथ साथ आपको कुछ वेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि विंड स्क्रीन की तरफ होते हैं। तो ये आप जाके देखिए अभी और नोट कीजिए ये फैक्टर। ठीक है, तो एनीवे, तो अब ये पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो है इनसाइड द विंडो आपकी सरफेस पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। तो जाहिर बात है जवाब यही होगा कि आपके पास जैसे ड्यू पॉइंट अराइव होगी दैट विल लीड यू टू द कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपको पता ये चला कि इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसके पार्शियल प्रेशर पे कितना होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर आपने मालूम किया विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और आपको पता चला कि दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट, और उस पार्शियल प्रेशर पे व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। दिस इज अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक, तो पता चला कि 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी जब आपका सरफेस टेम्परेचर 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ड्रॉप होगा तो आप की कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, और इन ऑर्डर टू अवॉइड इट यू मस्ट हैविंग टेम्परेचर अबव दैट वैल्यू। ठीक है भाई? जी यस सर। Yes, sir. Yes. We were talking about this sling psychrometer. So this is the type of the psychrometer, इसको कहते हैं साइक्रोमीटर। तो ये जो हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज, हमारे पास भी मौजूद है। अब जब लेबोरेटरीज खुलेगी तो इस पर जाएंगे, देखेंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसमें बेसिकली 2 थर्मामीटर्स लगे होते हैं, जिसका एक बल्ब ओपन होता है और दूसरा जो है वो वेटेड क्लोथ से विक से जो है डिप होता है। ठीक है, यानी पानी से विक होती है, इसको कहते हैं वेट। तो जाहिर बात है जो थर्मामीटर इस टेम्परेचर को नोट करेगा उसको कहेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, और जो खाली होगा उसको कहेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर है, दैट इज मेजर्ड विद दिस, एंड दिस इज द टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड, दैट इज नोन एज द वेट बल्ब। ठीक है, इसकी कोई भी इसका वजूद और दूसरा नहीं है, क्योंकि हमने खुद उसको वजूद दिया है वेट बल्ब को। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज बीन कॉल्ड एज द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इन दोनों टेम्परेचर की मदद से क्या पता चलेगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हम क्यों एक थर्मामीटर यूज कर रहे हैं विदाउट वेटेड विक एंड वन विथ वेटेड विक? क्या लॉजिक हो सकती है? लॉजिक बता दो बस, सिंपली, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। डिफरेंस ऑफ द Yes, टेम्परेचर sir. लेने के लिए। अच्छा, आप मुझे बताओ डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, ड्राई बल्ब का होगा या वेट बल्ब का होगा? सर अपना Sir, ड्राई dry होगा। रहेगा। ड्राई का ज्यादा होगा। क्यों ड्राई का ज्यादा होगा? सर ड्राई एटमॉस्फेयर का है ना। सर वेट तो शायद उसकी वाटर के बारे में बता रहा होगा ना। वेट बल्ब जो है वो वाटर के बारे में, यानी कि उसका तो टेम्परेचर बिल्कुल वी कैन कंफर्म के कम होगा। क्यों कंफर्म होगा ये बताओ ना। भाई जितने भी कंसेप्ट अभी आपने पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं, ये आपने समझ के पढ़े हैं ना, जी जी सर। या नहीं? जी जी। सर तो ये समझ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मालूम करने के लिए यूज होता होगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो बस, जो मेरा सवाल है। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, यस, एग्रीड। वेट बल्ब का टेम्परेचर कम होगा नॉर्मली ड्राई बल्ब के टेम्परेचर से, एग्रीड। क्यों? सर मास कम है उसका। मास कम है किसका? इसके अंदर सर वाटर भी थोड़ा सा ही आएगा, पार्शियल प्रेशर में। ये भी एक कॉमन यस सर। एक्सपीरियंस का इसका जवाब है। आपको कॉमन एक्सपीरियंस होता है, उस वही जवाब है जो इसके लिए है, वो भी नहीं बता पा रहे हो। सर सरफेस टेम्परेचर तो 2 ही हूंदो। 38। यस सर। हाँ, सर ख़बर त आहे पाणी जो टेम्परेचर घटि हूंदो, पर रीज़न ख़बर न आहे छो। शायद डेंसिटी हुनजी वधीक आहे, तंहिंजे करे हीट ट्रांसफर में वधीक थींदो हूंदो। बाबा हिकिड़ो तूं हथु ॿाहिरि रख, हवा लॻे पई, हिकिड़ो हथु रख ख़ाली, ॿिए हथ में थोरो पाणी लॻाए रख, त कहिड़े हथ में तोखे थधाइण वधीक महसूसु थींदी? त जंहिंमें पाणी लॻल हूंदो। पाणी लॻल हूंदो, मॉइस्ट हूंदो, ईअं थींदो आहे न? यस सर। Whenever you are coming outside your after taking bath, you will feel somewhat having a rapid heat transfer from your body and you feel cool as compared to if you have been dry.
हाँ भाई, समझ में आ रहा है? जी सर, जी 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 जी, सर। कॉज तो ऑफ यही वजह, हीट ट्रांसफर। हाँ, ये एवापोरेटिव कूलिंग कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? एवापोरेटिव कूलिंग। Evaporative cooling। पानी आपके हाथ पे लगा हो या स्पिरिट आपके हाथ में लगा हो, तो वो एरिया जहाँ पे स्पिरिट होता है, जहाँ पर रैपिड वो एवापोरेट होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होती है उस सरफेस पे ऑफ द स्किन। ऐसे होता है कि नहीं होता? जी जी यस सर सर। जी बिल्कुल सर। यस सर। बिल्कुल होता है। तो जाहिर बात है, जो वेटेड क्लॉथ का बल्ब जो होगा, जो उसमें एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पर एवापोरेटिव कूलिंग ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो जो एवापोरेटिव कूलिंग हो रही है, तो उससे क्या है कि इस ड्राई बल्ब के मुकाबले में इसका टेम्परेचर कम महसूस होगा, क्योंकि कूलिंग हो रही है। बात समझ आई कि नहीं? जी सर। ठीक है। अब ये तो बात तय हो गई कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से नॉर्मली कम होगा। ठीक। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि सराउंडिंग एयर में अगर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन तेज़ी से होगा और उतना ही वेट बल्ब टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और उतना ही जी इसका जी डिफरेंस ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, सही। जी बिल्कुल। क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सेंस नहीं कर रहा, वो सिंपली उसका एयर का टेम्परेचर ही सेंस कर रहा है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आके रुक जाएगा। लेकिन अगर एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अब एटमॉस्फेरिक एयर जो उसके सराउंडिंग में, इसके बल्ब के सराउंडिंग में मौजूद है, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, 90% है, तो अब आपकी सराउंडिंग एयर में सलाहियत कम हो गई है फर्दर वाटर वेपर को लेने के लिए। ऐसे होता है ना? जी तो जी जाहिर सर। बात है, जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वो कम होगा। जब रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर का जो कम होना है वो ज़्यादा इतना कम नहीं होगा। और ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ आई? जी जी सर सही है। जी सर। ठीक। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है, ये फॉर एग्जांपल है एक खास रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सराउंडिंग की है। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई तो ये डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर एयर सराउंडिंग की है ही सैचुरेटेड, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इन दोनों टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एग्रीड? जी सर। यस सर बिल्कुल। तो अब इनडायरेक्टली अब आपको एक सेंस आ गया, लॉजिक समझ में आ गई कि हम ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट की लॉजिक ये है कि हमको एक को वेट कर रहे हैं, एक को ड्राई रख रहे हैं बल्ब को। लॉजिक ये है कि ये तो ड्राई तो करेगा आपका जो भी एयर का सराउंडिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एयर का होगा। वे जो वेटेड विक वाला जो वेट बल्ब थर्मामीटर है, दिस विल गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर इन अ वे दैट रेट ऑफ एवापोरेशन कितना है। जितना रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा, उतना ही वेट बल्ब टेम्परेचर कम दिखाएगा। और रेट ऑफ इवापोरेशन का जो मेजर फैक्टर होता है वो सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी होती है। तो इनडायरेक्टली आपको एक सेंस मिल रहा है कि मुझे इस थर्मामीटर, इस इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर भी मिल जाएगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी आइडिया आ जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा, अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस साइक्लोमेट्रिक चार्ट। तो तो सर अब इससे आपको मैंने मालूम क्या बताया कर कि सकते हैं? एक बस यही होता है रेट ऑफ टेम्परेचर, एवापोरेशन मालूम कर सकते हैं। टेम्परेचर्स मालूम हो जाएंगे, और उन दो टेम्परेचर की मदद से आप इस साइक्लोमेट्रिक चार्ट को यूज करेंगे और आप मालूम कर सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज पैरामीटर्स ऑफ दैट एयर दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। ठीक है? तो एक बात तो जहन में रखिएगा कि वी आर हैविंग दिस साइक्लोमेट्रिक चार्ट दैट इज बीन जनरेटेड while the atmospheric pressure is 101.325 kP, यानी कि ये जो साइक्लोमेट्रिक चार्ट है ये सी लेवल के लिए है। ठीक है? जी सर।
और इस साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज करने के लिए आपको अगेन यू आर बी रिक्वायरिंग टू पैरामीटर्स फॉर एटमॉस्फेरिक एयर. विद हेल्प ऑफ दैट टू पैरामीटर्स यू कैन इजीली फाइंड a location anywhere on this surface and you can determine the rest of the parameters. ठीक है. अच्छा, एक तो तरीका एक्सपेरिमेंटल है कि एक्सपेरिमेंट से पहले आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर मालूम किया, वेट बल्ब टेम्परेचर मालूम किया. चलो एक मिसाल ले लेते हैं. अभी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, अब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये ऐसे ही मालूम होगा आप कर रहे हैं. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको मिला है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और वेट बल्ब टेम्परेचर आपको मिला है, जाहिर बात इससे कम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना डिफरेंस है? 5 डिग्री का. 5 डिग्री का. तो ये जो अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाई द डिफरेंस ऑफ 5 डिग्रीज बीन नोटेड, तो क्या कहोगे? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है. कैसे कहा आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है? तो 5 है तो ज्यादा है, अगर मैं 2 कहूँ तो ज्यादा नहीं होगी? और ज्यादा होगी. और 1 कहूँ तो मतलब इससे कम होगी 5 से. ज्यादा का मतलब क्या है कि 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है कम है? सर कम होगी ना सर. कंक्लूजन आपको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड विल नॉट शोइंग एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि ये ज़्यादा है या कम है. आपने ये बताना था कि सराउंडिंग एयर अनसेचुरेटेड है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% है, क्योंकि डिफरेंस आया है. जब भी डिफरेंस आएगा तो आपको एक सेंस मिल जाता है सिर्फ के सराउंडिंग एयर अनसेचुरेटेड है. अगर डिफरेंस 0 होता तो आप बिल्कुल बगैर किसी वजह से कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है. Isn't it? और एवापोरेशन हो रही है. बिल्कुल. हाँ, because of the evaporation of the water on the bulb where we are having a wetted wick, you are experiencing this temperature difference. ठीक है, और वो रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है सराउंडिंग एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ज़्यादा होगी तो कम डिफरेंस होगा, ज़्यादा कम होगी तो ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा. ठीक है. तो सर अगर ये साइकोमीटर हम खुद बनाना चाहें तो सर ये जो विक है ये मतलब किस मटेरियल की बनी हुई है जिसमें सर हमने वाटर डाला हुआ है? विक मतलब क्या होता है यार? एक वो आप विक जो यूज करते हैं ना लालटेन में, जो विक जो यूज होती है कपड़े वाली, लेदर वाली. जी जी सर. कोई विक है, कॉटन हो सकती है विक, फोम जो आपको यूज करते हैं वो भी हो सकती है विक, जो भी हो, वेटेड क्लॉथ हो वो आप लगा देंगे. तो जो भी होगा वो आप लगा सकते हैं वहाँ पर. ठीक है. अच्छा, अगर आप हम इसको यहाँ से ऐसे खोलें कि आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आई. आपको नज़र आ रहा है क्लियरली? ये नहीं चले, ख़त्म कर. Is it clear to you? Yes sir. तो सर क्लियर नहीं है लेकिन नजर आ रहा है. इसको कैसे किया जाता है कम? इसी को चलाते हैं. ठीक है.
जी सर सही है। अच्छा, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है वैल्यू 0, 10, 20 विथ इंक्रीमेंट ऑफ 1, सो ये आपके हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि जो वर्टिकल लाइनें आपको नज़र आ रही हैं स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, ये आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर शो कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कर्व्स हैं, ये आपको जो आउटर मोस्ट कर्व नज़र आ रही है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% की लाइन है। जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है आपको कर्व, जी सर। और हर कर्व के आगे परसेंटेज लिखा है 90%, 80%, 70%, 60%, ये सारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो ग्रीन कर्व्स हैं ये आपकी हो गई हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है भाई। जी सर। सर ये ग्रीन कर्व ऐसे ऊपर से नीचे भी आ रही है और नीचे से ऊपर भी आ रही है? नहीं, ये जो कर्व्स नज़र आ रही है ना आपको, सिर्फ कर्व्स नज़र आ रही हैं, ये आपकी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइंस है। ये आपकी हैं वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम ड्राई एयर, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम है ड्राई एयर, एटमॉस्फेरिक एयर का। ठीक है, ये आपका है ये जो ग्रीन लाइंस आपको जो नेगेटिव स्लोप लाइन नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम है एटमॉस्फेरिक एयर की पर किलोग्राम ड्राई एयर। ठीक, कर्व्स जो नज़र आ रही हैं वो एक ही किस्म की हैं, एक ही पैटर्न की हैं, ग्रीन कलर की हैं वो भी, एंड दैट आर लाइंस फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, और ये जो लाइन है ठीक है ये सर। सैचुरेशन कर्व कहलाती है, इसको कहते हैं सैचुरेशन कर्व, क्योंकि 100% की लाइन है, कर्व है, देयरफॉर इट इज बी नोन एज द सैचुरेशन कर्व। ठीक, तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें, ये जो वर्टिकल एक्सिस का आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपकी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, द ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा ग्राम्स मॉइस्चर पर किलोग्राम ड्राई एयर। ठीक है, ये वही है जो ओमेगा के फार्मूले से लिखा गया है। ठीक है, उसका स्केल है, यानी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ये वाली, ये हो जाएंगी ओमेगा की वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, बिल्कुल नजर आ रही हैं, ये डॉटेड लाइंस, दीज आर नोन एज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। नहीं सर, नहीं नजर आ रही। नजर आ रही सर हैं यहाँ पर इसमें तो नजर नहीं सर। हाँ, ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये आप जब देखेंगे तो ये डॉट जाके यहाँ पर 25 पे आके रुक रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 30 की डॉट लाइन, हाँ ये बिल्कुल ही स्मॉल डॉटेड डॉट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई वेट बल्ब की टेम्परेचर्स की लाइन। ठीक, ये आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट मौजूद है, उसको निकाल के रखें तो आप उसको देखते जाएं साथ साथ। मसला ये कि कौन जाए फोटोस्टेट करवाए और उसको रखे, हेडेक है ना। सर उते नजर ये लाइन कौन क्यों है सर उसमें भी सर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं सर है सर। ये पड़ा है सर, ये नजर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। हाँ, बहरहाल उसको आप इतना कंसीडर नहीं करें, लेकिन ऐसी किस्म की लाइनें बोल्ड भी हैं, ये नजर आ रही है बोल्ड लाइंस। बोल्ड आ रही है जी सर। हाँ, जी सर ये तो नज़र आ रही है। तो इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स में यही बोल्ड लाइंस जो नजर आ रही हैं ये एंथैल्पी की लाइनें बेसिकली, और इन्हीं को वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, इंक्लिनेशन दोनों की, स्लोप दोनों का सेम, नियरली सेम है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, जब आप गौर से आप इसको देखोगे तो जो डॉटेड लाइंस जो कि हमने वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें दिखाई हैं, वो और ये बोल्ड लाइन जो नज़र आ रही है, तकरीबन दोनों का स्लोप सेम है। ठीक, फर्क सिर्फ ये है कि जो ये डॉटेड लाइंस हैं उनकी जो रीडिंग है ये मेंशन है यहाँ इस कर्व पे, सैचुरेशन कर्व पे। तो हम कह सकते हैं कि जो 20 है ये वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू है, 25 इज अगेन द वेट बल्ब टेम्परेचर वैल्यू,
लेकिन इन्हीं लाइंस को जब फॉलो करते हुए जब आप आउटर स्केल पे आएंगे, इस स्केल पे आएंगे, तो ये हो जाएगी एंथैल्पी की वैल्यूज। ठीक है, किलो जूल्स पर किलोग्राम ड्राई एयर, ये वही एंथैल्पी की वैल्यू है जो अभी अभी हमने प्रॉब्लम में सॉल्व की थी, मालूम की थी। ठीक है, तो ये जो बोल्ड लाइन है, अगर आप बोल्ड लाइन पे किसी पॉइंट से आके इधर देखोगे तो दैट विल बी योर ऑन दिस स्केल, दैट विल बी योर वेट बल्ब टेम्परेचर, और जब आगे एक्सटेंड करके इस स्केल पे आओगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर एंथैल्पी। ठीक है, तो एनीवे अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास एक साइक्रोमीटर था, उसने हमें ये रीडिंग्स दी हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वेल बल्ब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो है वो वर्टिकल लाइंस होगी फ्रॉम द बॉटम, दैट इज 30। नजर आ रहा है भाई? यस सर, आ रहा यस है। सर। जी सर। हाँ, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है, ये हमारी वो लाइन जो हमें कंसीडर करनी है। ठीक है, अब जाहिर बात है इस लाइन पे तो मुख्तलिफ पॉइंट्स हो सकती हैं, तो दूसरी वैल्यू हमें मिली हुई है वेट बल्ब टेम्परेचर की, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस स्केल पे कहाँ है, यानी जो कर्व है, सैचुरेशन कर्व है, तो आपको नजर आ रहा है 25, ये नजर आ रहा है? जी यस सर। सर। तो इन्हीं बोल्ड लाइंस को जब आप फॉलो करोगे और इंक्लाइन, इसमें तो डॉट्स बनी हुई हैं, अगर आपको डॉट्स नजर आने में आप कामयाब हो जाते हो तो उसी को फॉलो करोगे, जो कि तकरीबन आपकी इन बोल्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल नजर आती हैं। तो जब आप इसको फॉलो करोगे तो यू विल बी हैविंग अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नजर आ रहा है? जी सर। जी सर। यस तो सर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने ऐसे आना है, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें इस तरह हैं, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को आपने इस तरह फॉलो करना है, क्योंकि ड्राई बल्ब की टेम्परेचर की लाइनें इस तरह हैं। ठीक है, तो अब आपको पास एक पॉइंट मिलेगा जिसकी मदद से आप रेस्ट ऑफ द वैल्यूज कैन बी फाउंड। नजर आया पॉइंट आपको? यस सर। अच्छा, अब आपसे पूछूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी उस एयर की? 55 सर। 67%। तकरीबन 76। 69 या 68। हाँ 68% 67। आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। यस। ठीक है, आप जल्दी आप नोट कर लेंगे इसको, 68%। ठीक, अच्छा इस एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी? सर 18। आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने के लिए आप इस तरफ जाओगे, 18 है। 18 क्या? ह्यूमिडिटी रेशियो। किलोग्राम ऑफ H2O per kilogram सर of air. Air. ग्राम ऑफ H2O। ग्राम H2O पर किलोग्राम ड्राई एयर। तो ये बेसिकली जब आप फार्मूला यूज करेंगे ना, 0.622 इंटू पीवी अपॉन पी माइनस पीवी, तो उससे आपको मिलेगी ये वैल्यू 18 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, सॉरी। ठीक है, तो उस फार्मूले में आपने टोटल प्रेशर लेना होगा 101.325 kPa। तो ये जहन में रखिएगा, जब आप एनालिटिकली मेथड यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी पहले पीवी मालूम करें, फिर पीवी से आपने फार्मूला यूज़ करें, फार्मूले से आप कैलकुलेट करें तो आपको ओमेगा मिलेगी। लेकिन जब आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज़ करेंगे तो आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक्यूरेसी से, लेकिन आपको मिलेगी इमीडिएटली। ठीक, इसी से आप बताओगे व्हाट वुड बी द एंथैल्पी। 77 होगी तकरीबन। 76। शाबाश। तो इसी पॉइंट को जब आप इसी लाइन के हिसाब से फॉलो करोगे, क्योंकि एंथैल्पी की लाइनें और वेट बल्ब की टेम्परेचर की लाइनें एक जैसी हैं तकरीबन। तो जब आप इस स्केल पे आओगे तो ये होगा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, और जब आप इस स्केल पे एक्सटेंड करके आओगे
तो आपको मिलेगी एंथैल्पी की वैल्यू तकरीबन कितनी है? तो 77 है। 1 2 3 4 5 6 6 है ना? यस सर। यस सर 76 तो तकरीबन 76 किलो जूल। बताओ भाई। किलोग्राम kg पर of dry air. किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। पर किलोग्राम ड्राई है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंथैल्पी। और अगर आप मालूम करना चाहें स्पेसिफिक वॉल्यूम तो भी आपको मालूम हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो इस तरह की बनी हुई 0.88 और ये 0.89 ये 0.9, ठीक है। तो आपका जो ये पॉइंट है ये 0.88 और 0.89 के दरमियान है। तो 0.882 सही है, 883 0.883 अंदाजन ऐसे होगा ना? जी सर। बिल्कुल जी सर, सर। यही होगा। तो 0.883 तो इस तरह आप ये वैल्यूज जो है मालूम कर सकते हैं। आई होप के यू गॉट दिस यूज ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो यही बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये वेट बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था तो जाहिर बात है 28 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो 6 7 सॉरी ये आधा है, कितना है? 5 का है। तो 26 27 28 20 कैसे है? 30 है। आगे जाके सर आगे थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हुआ है। नहीं ये आपका है, ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज है। ये आपकी वैल्यू ये है, दूसरी आपका फ्रैक्शन ये है, तीसरा हाफ आपका हाफ से ज्यादा सही है। ये है, चौथा ये है। तो हर का एक एक यूनिट है, ठीक है। तो ये 26 27 28 अगर 28 होता और 30 ड्राई बल्ब होता तो आपका जो पॉइंट होता यहाँ पर होता। तो आपने देखा कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है और डिफरेंस कम है दोनों का, तो आपने क्या कहा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उस एयर की। तो आप नज़र आ रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी तकरीबन 90% के करीब है, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड। और आप एक चीज़ और नोट करें कि सैचुरेशन कर्व पे आपके पास ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है वही सैचुरेशन कर्व पे आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आएगा, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम होंगे ऑन द सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन तो होगी। हाँ। तीसरी चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आप मालूम कर सकते हैं दैट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बस आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूँ। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे मालूम करोगे इस एयर का, इस एयर का जो अभी हमने अभी ली हुई है? चार्ट के जरिए सर। हाँ, चार्ट के जरिए से मालूम कर सकते हैं। वो मालूम करने का तरीका ये है कि आप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे आएंगे और जैसे ही आप इस कर्व पे पहुंचेंगे सैचुरेशन कर्व पे, और जो टेम्परेचर होगा वहां पर दैट विल बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। 20 21 22 23 तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आई बात? सही है सर। जी सर सही है। जी सर। अब मतलब ये हुआ कि जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मालूम करोगे तो किसी भी पॉइंट के लेफ्ट पर जाके सैचुरेशन कर्व पे जहां भी आप आएंगे उस वैल्यू को जब आप मालूम करेंगे टेम्परेचर को, दैट विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तकरीबन ये आपका आता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सर। अब आप
समझ गए कि साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे यूज करना है। इसी साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज करते हुए अभी आप जो हमने प्रॉब्लम किया है विद हेल्प ऑफ फार्मूलाज, उसको आप सॉल्व करें विद हेल्प ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट। लेकिन उसमें आपके पास प्रेशर गिवन था 100 kPa, इसमें आपने यूज करना है 101.325 kPa। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप रिपीट कीजिएगा एनालिटिकली विद हेल्प ऑफ फार्मूला बाय रिप्लेसिंग 100 kPa इनटू 101.325 kPa। ठीक है, तो वैल्यूज आपको मिलेंगी, वही आपने कंफर्म करना है कि साइकोमेट्रिक चार्ट से भी वही मिलनी चाहिए। समझ आई बात? जी सर। जी सर। हाँ, ये जो प्रॉब्लम हमने किया था ना अभी सेंजिल वाला, तो इस 100 को आप चेंज करेंगे 101.325 kPa और इस पूरे प्रॉब्लम को रिपीट करेंगे, तो जाहिर बात है ये वैल्यूज जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी, जो रिजल्ट्स आएंगी वो चेंज होंगी। तो इन्हीं रिजल्ट्स की मदद से आप कंफर्म करेंगे और यही प्रॉब्लम रिपीट करेंगे फॉर द बाय यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो साइकोमेट्रिक चार्ट यूज करके आप ये वैल्यूज कंफर्म करें और गेट acquainted with the use of the psychometric chart। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अभी क्लास किसकी है? मैकेनिकल वाइब्रेशन वाइब्रेशन।